Okay guys, now let's our next topic, that is hyperbola. Okay, hyperbola is the last topic of your coordinate geometry. Okay, so let's see what is the definition of hyperbola. कैसे हम define करते हैं? So the definition is very much same like ellipse guys. Hyperbola is the locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point called focus is always e times इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है गाइस, लेट्स सपोज h, k, ऑलराइट, एंड वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट व्हिच वी कॉल इट एज अ फोकस, ऑलराइट, एंड वी हैव अ फिक्स्ड लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स. ओके, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे गाइस, दैट इफ द रेशियो, okay, if the ratio ps upon pm, all right, if this ratio ps upon pm is a constant and that is equal to eccentricity e, then this point p will, its locus will be a hyperbola. ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि अगर ps upon pm, the ratio of the distance from a fixed point that is focus to distance from a fixed line that is directrix, अगर ये रेशियो कांस्टेंट है तो ये हाइपरबोला होगा. अब आप सोच रहे होंगे सर यही डेफिनेशन तो आपने एलिप्स में भी बताई थी, वहां पे भी पीएस अपॉन पीएम कांस्टेंट ही आ रहा था. तो गाइज मैंने आपको कोनिक्स में बताया था कि दिस डेफिनेशन इज सेम फॉर एवरी कोनिक, है ना. पीएस अपॉन पीएम सभी कोनिक के लिए कांस्टेंट के ही इक्वल आता है. पैराबोला के लिए ये कांस्टेंट इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 1 हो जाता है, इस एलिप्स के लिए ये इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो जाता है. और अगर गाइज इस इसेंट्रिसिटी ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, देन वी विल से द लोकस ऑफ पॉइंट पी विल बी हाइपरबोला. ठीक है, तो सेम डेफिनेशन हम बोल रहे हैं कि इफ ps अपॉन pm इज अ कांस्टेंट e, देन एंड इफ दिस e इज ग्रेटर देन 1, देन दिस विल बी कॉल्ड एज अ लोकस, विल बी कॉल्ड एज अ हाइपरबोला. ऑलराइट, तो यहां पर गाइज इस तरह से हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, ps अपॉन pm इज इक्वल्स टू e, so point p, and if e is greater than 1, so p point will move in a hyperbola. All right, its locus will be a hyperbola. ठीक है, चलिए let's see guys. So ps is equals to e times of pm, we have already discussed this. Okay, let's see a question guys based on this. Find the equation of set of all the points whose distance from 5,0 are 5/4 टाइम्स. ठीक है, इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 5/4 टाइम्स हो जाए फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन. ओके, सो गाइज यहाँ आपको यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल दीज सेट ऑफ पॉइंट्स. ऑलराइट, सो हियर इट विल बी अ वेरी बेसिक डिस्कशन. वी विल से कि हमारा पॉइंट P जो है, लेट अस अज्यूम इट्स कोऑर्डिनेट्स एज h, k, दिस इज द वेरिएबल पॉइंट. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट फोकस, दैट इज बेटा 5,0, okay, is equal to 5/4 times to the distance of this point P from the line x equal to 16 upon 5. okay, तो guys यहां पर आप क्या बोल देंगे, using the concept of definition of hyperbola, we will say again sir ps upon pm जो होगा constant e के बराबर होगा. and can you see the constant e over here, it is given to you as 5/4. okay, तो ps distance you can calculate, it will be beta under root of h minus 5 square plus k minus 0 square, that will be k square, equal to e times, that is 5/4 into pm. Now guys, what will be this distance pm? So if the x coordinate of this point is h, x coordinate of any point lying on this line is 16/5. So can I say the pm distance will be h minus 16/5. Now you can take a square and simplify it. So here if you take LCM guys, it will become 5h minus 16/4, because 5 and 5 will get cancelled, and if you take square both the sides, this part will be cancelled. Okay, so this is what we are getting. Can you see we are getting a relation between h and k, and if you replace h with x and k with y, you will get a equation of all the set of points, and that will be nothing but that will be equation of hyperbola only. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है, ps is equal to e times pm, and you can solve it. okay, so you will get a equation from here, that will be the equation of hyperbola. Now guys, let's try to see that what will be the standard equation of hyperbola. ठीक है, किसी भी हाइपरबोला के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी. ऑलराइट, सो गाइज फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ hyperbola, what we will say, so if you look it over here, we will assume guys, we will assume the
for standard equation of hyperbola, we will take the focus of the curve at a point AE, 0, where E is the eccentricity and A is some constant. तो point AE, 0 को हमने क्या मान लिया? It is the focus. All right, and we have assumed the equation of this particular line, that is your directrix, as x equal to A by A. ऑलराइट, तो अगर हम बेटा फिक्स्ड पॉइंट फोकस को AE, 0 और डायरेक्ट्रिक्स को x इक्वल टू A अपॉन E अज्यूम करते हैं, सो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला. ओके, सो लेट अस अज्यूम दिस इज अ पॉइंट वेरिएबल पॉइंट P, दैट इज x, y. सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ our hyperbola, we will say PS upon PM will be E, or you can say PS will be E times of PM. ठीक है, PS कितना हो जाएगा? E times of PM. So guys, if you find the PS distance, can we say, applying distance formula, it will be under root of x minus AE square plus y minus 0, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? Y minus 0 will be simply y square, and this distance will be equal to E times PM. आप मुझे बताएंगे PM कितना डिस्टेंस होगा? तो क्या मैं इसे बेटा x minus A upon E लिखूं? Because this is the line x equal to A upon E, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x ही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा क्या डिफरेंट बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा? दैट इज x माइनस A upon E. Now guys, if you simplify it, you know, here taking LCM, so EX minus A you will get, and E will get cancelled, and if I take square both the sides, so here the under root will also get cancelled. Okay, so if you open this, I'll get x square plus A square E square minus 2AEX plus y square equal to beta square of this term, that will be E square x square plus A square and minus 2AEX. Now guys, here if you see, can we say minus 2AEX and minus 2AEX will be cancelled? ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पर कैंसल हो जाएंगे, और अगर ये दोनों टर्म्स कैंसल हो गए, so let's take the term of x square over here. So if I take x square common, I will get 1 minus E square over here, ठीक है, plus y square, and let's take this constant term A square E square over here. So if I take A square common, I will get this as 1 minus E square. ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हमारा रिलेशन आ गया, x square into 1 minus E square plus y square equal to A square into 1 minus E square. Now guys, here if I divide with this term, if I take this term in the denominator, can you see 1 minus E square and 1 minus E square will get cancelled? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x square upon A square. और बेटा ये पूरा टर्म भी तो एक कांस्टेंट ही है, A square into 1 minus B E square, ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? A square into 1 minus E square. Okay, and that will be equal to 1. So guys, this is nothing but this, what you are getting is your standard equation of hyperbola, x square upon A square plus y square upon A square into 1 minus E square equal to 1. Now if you look at this term, if it is a constant, I can assume it as some constant B square, and guys, if you put that, I will get the standard equation of hyperbola as x square upon A square. All right, x square upon A square plus y square upon upon y square upon A square into 1 minus E square, that will be beta B square, है ना, जिसको आप क्या बोल दोगे? You will call it as a B square. All right, equal to 1. Now you might be thinking कि सर ये तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, हाँ, ये तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, तो हाइपरबोला कैसे हुआ? यहां पर आप बोल रहे हो कि ये हमने डिराइव किया हाइपरबोला के लिए और एलिप्स का इक्वेशन किया, या फिर एलिप्स और हाइपरबोला का इक्वेशन सेम होता है? नहीं, अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व हैं तो दे विल हैव डिफरेंट इक्वेशन. तो सर क्या गलत किया है हमने? गाइस, गलत कुछ नहीं किया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट ओवर हियर. व्हाट इज दैट वन पॉइंट? कि अभी हमने बोला था दैट फॉर हाइपरबोला द इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. तो अगर E ग्रेटर देन 1 है बेटा, तो E स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर E स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है तो क्या ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा? और अगर ये टर्म नेगेटिव है तो गाइज हम क्या करेंगे? टू मेक इट पॉजिटिव, लेट्स टेक माइनस साइन आउटसाइड. ओके, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि माइनस साइन को आउटसाइड ले लेते हैं सर, तो E स्क्वायर माइनस 1 फिर आ जाएगा पॉजिटिव.
है ना। तो यहां से अगर मैं एक माइनस साइन यहां बाहर निकाल लिया तो ये बनेगा बेटा ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और अब ये जो टर्म है इट इज नाउ पॉजिटिव, सो नाउ आई कैन कॉल इट एज बी स्क्वायर। पहले नहीं कर सकते थे, पहले आपको लग रहा होगा कि हाँ सर कांस्टेंट है बी स्क्वायर ले लेते हैं, अरे बी स्क्वायर अगर आपने लिया है तो वो पॉजिटिव टर्म होगा ना, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस बाहर निकाला, और अब ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 को बेटा अगर मैं बी स्क्वायर पुट करता हूं तो यहां से आपके पास फाइनली देखिए हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. So this is your standard equation of hyperbola. तो इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, वहां प्लस था सर, यहां माइनस है, दैट्स इट. तो स्टैंडर्ड इक्वेशन सिंपली ये है, इस तरह से आप डिराइव कर सकते हैं सेम फॉर्मूला PS इज इक्वल टू EPM, एवरीथिंग इज सिमिलर, इन द एंड यू जस्ट हैव टू टेक अ माइनस बिकॉज दिस टर्म वी हैव टू टेक पॉजिटिव. तो ये आपका इक्वेशन आ गया. This is just for your understanding. You just have to remember this part, okay? तो standard equation of hyperbola जो है वो कितना आ गया सर, x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. Okay? And guys, what are the focus and your directrix for this, for standard hyperbola? So focus as ellipse, same. It will be AE, and the directrix is also same as ellipse, that is A upon E. The only difference is आपको याद होगा कि वहां पर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, इसीलिए डायरेक्ट्रिक्स फोकस से आगे होता है, बट यहां इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो A into E will be farther from origin and A upon E will be closer to origin. Okay, so this point please remember, eccentricity, okay, is less than 1 for ellipse and it is greater than 1 for hyperbola, guys. Okay, so this is your standard equation of ellipse. Where guys, what is b square? So b square is a square into e square minus 1, और guys यहीं से अगर मैं इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला निकालूं तो देखो b square अपॉन a square will come equal to e square minus 1, 1 को इधर लाए तो आ जाएगा 1 plus b square upon a square equal to e square, and that will finally give you the formula of eccentricity as 1 plus under root of 1 plus b square upon a square. ठीक है, तो आपको दिख रहा है यू आर एडिंग समथिंग पॉजिटिव इन 1, तो इसीलिए इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 1 से बड़ा आ जाएगा बेटा. ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इसेंट्रिसिटी. सो लेट्स सपोज इफ आई गिव यू अ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला समथिंग लाइक दिस. ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है एंड आई नीड टू फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी. So guys, what is the formula for eccentricity? We already know that eccentricity E is equal to under root of 1 plus b square upon a square. Right? This is the formula. Now here on comparison, you can clearly see the value of b square is 16 and the value of a square is 9. Okay, so if you take LCM, we will get it as 9 plus 16, which will be 25 upon 9. And guys, under root of 25 upon 9 कितना हो जाएगा बेटा? It will be 5 upon 3. ठीक है, तो आपको क्लियरली यहां से दिख रहा है that eccentricity for this hyperbola is 5 by 3. ठीक है, eccentricity कितना हो जाएगा? 5 upon 3 हो जाएगा. ऑलराइट, अब यहां पर guys, you please don't get confused. आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि सर एलिप्स में ऐसा होता था कि अगर b ग्रेटर देन a हो जाए तो हमें वर्टिकल एलिप्स मिलता था, और अगर a ग्रेटर देन b हो जाए तो हमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स मिलता था. क्या यहां भी वैसा कुछ होगा? क्योंकि आपने b स्क्वायर बढ़ा लिया है, तो क्या ये फॉर्मूला वगैरह हम सही लगा पा रहे हैं या नहीं? तो गाइज यहां पर प्लीज रिमेंबर, इन केस ऑफ हाइपरबोला इट डजंट मैटर वेदर a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a. अगर हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो हमें along the x axis ही हाइपरबोला मिलेगा. ऑलराइट, वी विल गेट द हाइपरबोला along the x axis only. y axis पे नहीं मिलेगा क्या? नहीं, y axis पे मिलेगा. कब मिलेगा? दैट विल डिस्कस फर्दर, बट अभी के लिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a में कुछ होगा. नहीं, a ग्रेटर देन b हो तब भी यही फॉर्मूला, b ग्रेटर देन a हो तब भी यही फॉर्मूला. चलिए आगे बढ़ेंगे. सो गाइज नाउ सी, हमने फोकस क्या लिया था स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए? AE, 0 और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ली थी x इक्वल टू a अपॉन e.
नाउ गाइस सिंस द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, क्यों? क्योंकि आप इक्वेशन से देख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है? तो ये कर्व जो है बेटा ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है ना? यहां पर x बेसिकली y की अगर एक वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग x की दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, क्लियरली यू कैन सी प्लस एंड माइनस। तो अगर कर्व सिमेट्रिक है, इसी वजह से गाइज वी विल गेट वन मोर फोकस दैट इज s डैश, which will be just you can say mirror image about the y axis for s, so its coordinate will be minus ae comma 0, और डायरेक्ट्रिक्स भी गाइज यहां पर हमें दूसरा मिलेगा that will be x equal to minus a upon e. all right, so if you see in the figure guys, this is basically guys your hyperbola, ठीक है? this is the curve hyperbola, ठीक है? तो यहां पर गाइज सिमेट्रिकल कर्व है, that's why we will get one of the branch, these are called as branches of hyperbola. This is one branch, this is the second branch. So corresponding to this focus AE comma 0, I will have a mirror image about y axis, second focus minus AE comma 0, और डायरेक्ट्रिक्स बेटा x इक्वल टू a अपॉन e है, तो उसी की जगह पे दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a अपॉन e हो जाएगी, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, सेम लाइक एलिप्स वी विल हैव टू फोकाइज एंड टू डायरेक्ट्रिक्स, ओके? ऑलराइट, लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट गाइस. सो द क्वेश्चन सेज if the distance between the foci, okay, distance between the foci, तो अभी हमने गाइस देखा that for a hyperbola, okay, for a hyperbola we have two focus, ठीक है? एक तो बेटा आपका s होता है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं ae, 0, और दूसरा होता है s डैश जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस ae, 0. So if I want to ask distance between foci, that means distance between s and s dash, तो क्या आपको दिख रहा है ये 2ae होगा, ये आपका ओरिजिन है, तो ये डिस्टेंस है बेटा ae, और डिस्टेंस तो ये भी सेम ही है ना ae, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा s डैश, आई कैन से सर इट विल बी 2ae, एंड गाइस इन द क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस एज 16. So if you compare, I will get the value of ae equal to 8, this for first equation. Clear or not? Okay, so यहां से a into e का वैल्यू बेटा हमें 8 मिल गया. अच्छा, और क्या गिवन है? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू √2 है, तो गाइज इसेंट्रिसिटी अगर √2 है, सो 8 आई कैन राइट इट एज 4 into 2, तो देखो यहां से a का वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूं 4 √2 आ जाएगा बेटा, यस और नो, है ना? इफ यू डिवाइड इट विद √2, द वैल्यू ऑफ a विल कम एज 4 √2. नाउ वी हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हमें हाइपरबोला का इक्वेशन लिखना है. सो गाइस व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला? इट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन. यू ऑलरेडी हैव a बट b नहीं है सर हमारे पास, हाँ? So how you can find b? Yes guys, you already have the value of eccentricity ना, तो अगर हम eccentricity का फॉर्मूला लगाएं, that is √2 will be equal to under root of 1 plus b square upon a square. So guys, a square 4 √2 square, can you see it will be 32. Okay, so if you compare the terms inside root, I will get 2 equal to 1 plus b square by 32, or 2 minus 1 I can say 1 is equal to b square upon 32. तो यहां से guys b square का वैल्यू सिंपली आ रहा है 32. So b square is 32, and from here if you take a square, a square भी 32 आ रहा है. So a square and b square both are 32. So the equation of hyperbola will be x square upon 32 minus y square upon 32 equal to 1. Okay, so this is your equation of hyperbola. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकाइज 2a यूज करके हमने एक रिलेशन a का वैल्यू निकाल लिया, इसेंट्रिसिटी गिवन था, यूजिंग दैट वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b. ठीक है, a और b आ गए तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लोग बहुत इजीली लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? ओके.